Good morning students. Welcome to computer class. Today we will start session 2, feedback in communication. In previous session you will studied four types of communication: verbal communication, non-verbal, written and visual communication. Clear dear students? So today we will start feedback in communication. So first of all we study what is communication process and how it feedback come. As you know very well, communication mean transferring of signal or message from one source to another source. एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जब हम अपना सिग्नल या मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है. इसी में आपका एक फीडबैक वर्ड यहाँ पर ऐड किया गया है. एज यू कैन सी हियर, when input message come to the process, then it will give required output, then desired output will give feedback to the input data. Clear students? So your feedback comes from the output source. Clear? So let's see feedback in communication. So what is the meaning of feedback, or what is the importance of feedback in communication process? So meaning of feedback is integral to the teaching. It is also a learning process. Clear? ये एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग और लर्निंग का. जब हम टीचिंग और लर्निंग को इकट्ठा करते हैं तो इन दोनों प्रोसेस को एक प्रोसेस का नाम कहा जाता है फीडबैक. क्लियर? फीडबैक इज इंटीग्रल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. क्लियर? यहाँ पर आप टीचिंग लर्निंग को इकट्ठा एक प्रोसेस मानेंगे. इन्हीं को इकट्ठा करके आपका फीडबैक बनता है. Clear? So this is the definition of your feedback. So you will learn here this line: feedback is integral to the teaching learning process. Clear? Second point comes here: feedback is an ongoing process. Ongoing process है जो चलने वाली process है. Clear? Third point: effective feedback help student to develop their understanding. अगर एक टीचर आपको टीच कर रही है, दैट ऑन दैट टाइम शी विल गेट फीडबैक फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स, देन दिस इज़ द डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. इससे क्या होगा? स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करेंगे इन रिलेशन टू द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज़ योर इफ़ेक्टिव फीडबैक. इफ़ेक्टिव फीडबैक होने के साथ क्या क्या फीचर्स आपके जुड़ते हैं? अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, आपका स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा. क्लियर? लास्ट पॉइंट: फीडबैक इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ इफ़ेक्टिव लर्निंग. इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए फीडबैक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट की हेल्प करता है. बीइंग स्टडीड एंड गिव देम क्लियर गाइडेंस ऑन हाउ टू इम्प्रूव देयर लर्निंग. कैसे वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करें, इसमें फीडबैक का बहुत इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट है. क्लियर? सो यू हैव टू लर्न दिस फीडबैक इम्पोर्टेंस इन लर्निंग एंड टीचिंग. So here we will see what is communication process. You studied this topic earlier. Let's see again what is communication process. It start from the sender. It will create a message. For creating a message, it will encode that message. On that point, message is created. Then with the help of channel or medium, that message will be decoded. After that it will get by receiver, and receiver will give feedback for it. Clear students? Let's revise it again. It start from sender. After that, sender will create a message that will be
go on message, and with the help of channel or medium that message will be decode होगा यहाँ पे मैसेज. आफ्टर दैट इट विल गेट बाय रिसीवर एंड रिसीवर विल गिव फीडबैक एंड इट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ communication. Clear, students? So here it is the communication model. Here we will see what is encodes and decodes, signals, idea, feedback, and where we get feedback. This is the communication model. Let's see. First of all, sender create an idea. After that, that idea will encode in a message. After that, that message will be transmission with the medium, and on the next step, that encoded message passes through the signal and get by recipients के पास वो मैसेज जाएगा, वो उसको डिकोड करेगा. पहले वो मैसेज एनकोड होता है, आफ्टर दैट वो डिकोड होता है. जैसे आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, क्या जैसे वर्डिंग आप बोल रहे हैं वो दूसरे ही रिसीवर के पास वो जो वॉइस जाती है, क्या वो उसी फॉर्म में जाती है? नहीं. पहले वो, अगर हम लैंडलाइन की बात करें तो उसमें जो मीडियम है, वो जो आपका वॉइस है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में एक्सचेंज होकर डिकोड होएगी. क्लियर? पहले वो एनकोड होएगी, आफ्टर दैट वो डिकोड होएगी, इसके बाद ही वो रिसीवर के फ़ोन कॉल्स तक पहुंचती है. क्लियर? सो आफ्टर दैट, तो मीडियम में जो हमारा सिग्नल है वॉइस का, वो कोई और अंडरस्टूड ना करके वो पर्टिकुलर उसी सिग्नल तक ही जाता है जहाँ पर हमने फ़ोन नंबर डायल कर रखा है. क्लियर? सो इन लास्ट, रिसीवर विल गेट मीनिंगफुल मैसेज. आफ्टर दैट, receiver will give feedback to the sender. This is your communication channel. So these are the characteristics of feedback. First is intention. Intention mean here message should received by receiver successfully. Successfully intention के लिए हम intention का यूज़ करते हैं. Clear? Intention word is used for specific message reached to the receiver successfully. Clear? Second point is simplicity. Simplicity mean should not be vague or should be convey with clarity. जो मैसेज होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए. ठीक है? क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट आपका होना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मीन आपका स्पेसिफिक पॉइंट के साथ उसका मीनिंगफुल एक डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए उसके साथ. पॉइंट टू पॉइंट तो बात होगी, पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक मिलेगी, लेकिन उसके साथ उसका मीनिंग भी ज़रूर डिस्क्राइब होना चाहिए. क्लियर, स्टूडेंट्स? योर फोर्थ पॉइंट इज यूजफुलनेस. यूजफुल means effective feedback in the one that aim to improve the overall communication. It means जो आपका overall communication है उसका complete feedback मिलना चाहिए. That is called your usefulness. Clear? Next point is timeliness. Timeliness mean effective feedback is one that intimate the sender about the message इज़ ऑन टाइम. जो आपका फीडबैक होना चाहिए वो ऑन द टाइम होना चाहिए. डोंट डिले दैट फीडबैक इन द प्रोसेस. क्लियर, स्टूडेंट्स? ऑन द टाइम इज टाइमलीनेस. नेक्स्ट इज क्लैरिटी. जो आपके फीडबैक में जो कम्युनिकेशन होगा वो विद क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज वैलिडिटी एंड रिलायबल. जो वो आपका रीज़न वैलिड होना चाहिए और विद इन रिलायबल मीन वो ईजी टू अंडरस्टूड होना चाहिए विद इन द टाइम पीरियड. लास्ट पॉइंट इज रीडीनेस. जो आपका फीडबैक होना चाहिए वो रीडीनेस, पढ़ने लायक होना चाहिए. क्लियर? सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फीडबैक. यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट विद देयर मीनिंग्स. Now we will study, there are three types of feedbacks here: formal, informal feedback, descriptive, non-descriptive feedback, specific and non-specific feedback. Let's see. Informal feedback, it covers specific and predefined blueprints. It
इट वर्क ऑन सम प्रिंसिपल। जो आपका फॉर्मल फीडबैक होता है वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्री डिफाइन उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके ऊपर आपका फॉर्मल फीडबैक दिया जाता है। क्लियर? इनफॉर्मल फीडबैक, इट डज नॉट फॉलो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इसमें कोई प्री डिफाइंड रूल्स नहीं होते। ये एज सच पासिस विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंट मैसेज। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या फिर किसी सोशल साइट्स पे हम कमेंट्स कर देते हैं ऑडियंस के थ्रू, दिस इज कॉल्ड योर इनफॉर्मल फीडबैक। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज योर डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। इन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन डिटेल। डिस्क्राइब किया जाता है आपके फीडबैक को एक मीनिंगफुल वे से। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्रिप्टिव। नॉन डिस्क्रिप्टिव में आपका पॉइंट टू पॉइंट रिस्पॉन्स किया जाता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉइंट टू पॉइंट रिस्पॉन्स किया जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के साथ, दैट इज कॉल्ड योर नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। Next is your specific and non-specific feedback. In specific feedback, talk about a thing or a point particularly. इसमें एक पॉइंट के ऊपर बात की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड योर स्पेसिफिक फीडबैक। एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, इसमें एक टॉपिक लिया जाता है, उस टॉपिक का बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है, जनरल ओवरव्यू दिया जाता है उस टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड योर non-specific feedback. Clear students? This is your session 2 feedback in communication. I hope you have understood this topic very well. Have a good day.